So hello everyone, welcome to Eclore, the place where you can enhance your learning with a high quality videos with their simplified notes. So today we will understand the concept of consumer surplus. So before jumping onto the main definition and those concepts and those jargons, first understand this concept in a very simple way. Consumer surplus. So say for example, आप shopping पे गए हैं, आपने स्ट्रीट शॉपिंग पे गए हैं, राइट? यू एक्सपेक्टेड, आपने सोचा कि ठीक है आपको कोई आउटफिट खरीदना है, आपने सोचा कि ठीक है 1000 तक होगा तो मैं आउटफिट खरीद लूंगी। वहीं पे आपको एक आउटफिट बहुत पसंद आया, आपने उसका प्राइस पूछा, शॉपकीपर ने कहा कि दिस कॉस्ट फॉर 500 रुपीज। आप 1000 रुपये पे करना चाहते थे, पर वो आउटफिट आपको 500 रुपये में भी मिल रहा है। सो दैट 500 रुपीज जो एक्स्ट्रा आपने गेन किया है यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट द कंज्यूमर सरप्लस। आप पे करना चाह रहे थे 1000 रुपीज, बट आपको आउटफिट बहुत पसंद भी है और वो 500 रुपीज में मिल रहा है। सो दैट 500 रुपीज, दैट गेन इज नथिंग बट अ कंज्यूमर surplus. So excess of price consumer willing to pay than a market price, that is a consumer surplus. So we could say that a gap between the total utility of a good and its market value. I know that this jargons might be a bit confusing. So we would understand this concept with the help of these numbers, right? So say for example, this is the units of the commodity that you are consuming. This is marginal utility, and this marginal utility is expressed in terms of money. All right? This is the market price of the commodity and this is the consumer surplus. Now, how we derive these numbers, I'll explain the same, right? So, units of the commodity. So, say for example, you're damn thirsty. It's a hot summer and आपको बहुत तेज प्यास लगी है and you need a water now, right? So, आप इतने प्यासे हैं कि आपने सोचा कि अगर मुझे एक ग्लास पानी का मिल जाए, 50 रुपीज तक मैं देने को रेडी हूँ. So, that is nothing but your marginal utility जो आपने पैसों के टर्म्स में एक्सप्रेस की है, राइट? सो मार्जिनल यूटिलिटी या जो भी आपको सेटिस्फैक्शन किसी कमोडिटी से मिल रहा है, आप उसको इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस कर सकते हैं. अगर कोई दो कमोडिटी है, राइट, मैं उस चीज के लिए 100 रुपीज पे करने को रेडी हूँ, मेरे फ्रेंड उस कमोडिटी के लिए सिर्फ 50 रुपीज पे करने को रेडी. वाई? मे भी हो सकता है कि वो कमोडिटी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मुझे उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता हो, राइट? सो दैट इज द सेम. यहाँ पे कंज्यूमर जो है बहुत ही प्यासा है, गर्मी के दिन है, so he want to drink water. So here he is ready to pay 50 rupees for one glass or one bottle of water, right? But the market price is just 10 rupees. 10 रुपए में आपको बॉटल मिल रही है. So that 40 rupees is nothing but the consumer surplus, right? Now what happened with the second unit of the commodity? अब आप बहुत प्यासे हैं, एक और बॉटल मिल जाती तो और अच्छा रहता. So what happened? यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटी, अब आपकी प्यास तो बुझ गई है. दैट एडिशनल वाटर बॉटल आप इसलिए चाह रहे हैं कि आपको थोड़ा ज्यादा सेटिस्फैक्शन, ज्यादा प्लेजर मिलेगा. सो thereby now you just willing to pay 40 rupees for that bottle, क्योंकि अब तो आपकी प्यास बुझ गई है, राइट? So that now you are willing to pay 40 rupees, but the market price is 10 rupees, so the consumer surplus is nothing but 30 rupees, right? So this is how we derive the consumer surplus. So यहाँ पे जो marginal utility है, that is 40 rupees. That means this is the amount you are willing to pay. 40 rupees आप एक बॉटल के लिए पे करने को रेडी है, बट आपका जो मार्केट प्राइस है बॉटल का वो 10 रुपीज है. सो दैट 30 रुपीज इज अ कंज्यूमर सरप्लस. सो व्हेन वी ऐड ऑल दिस यूनिट्स, सो यहाँ पे अगर आप ये सब कुछ ऐड करेंगे, सो टोटल यू विल गेट 150, एंड व्हेन यू ऐड ऑल दिस यूनिट्स यू विल गेट 100. ओके, सो वी कुड से दैट अगर आप इन सबको ऐड करेंगे, मतलब जो 5 यूनिट्स जो आपने कंज्यूम किए, उससे टोटल यूटिलिटी आपको कितनी मिली? 150. दैट इज द टोटल यूटिलिटी. नाउ 5 यूनिट्स जो आपने कंज्यूम किए, उसके लिए आपको पे कितना करना है? 10 रुपीज फॉर वन बॉटल. 10 rupees for one bottle, you are buying 5 units, so that is 50 rupees, right? So when you deduct the same, you will get 100 rupees as a consumer surplus. So when you add this, you will get 100 rupees. आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं. This 150 is the total utility that is you are deriving. ये 150 total utility आपको मिल रही है. That means अगर 5 यूनिट के लिए आपको इतना सेटिस्फैक्शन मिल रहा था और आप इतना पे करने को रेडी थे, 150 रुपीज फॉर 5 यूनिट्स, बट मार्केट प्राइस 10 रुपीज है, 5 बॉटल के लिए सिर्फ 50 रुपए लग रहे हैं, एंड सो 100 रुपीज इज नथिंग बट योर कंज्यूमर सरप्लस. सो दैट इज अ गैप बिटवीन द टोटल यूटिलिटी
This 150 rupees is a total utility of a good, and जो market value है that is 50 rupees, so that 100 rupees is nothing but your consumer surplus, right? Now there's some assumptions. Consumer surplus theory की कुछ assumptions हैं, we would understand the same. First is utility can be measured. सबसे पहला assumption है कि utility को measure किया जा सकता है. जैसे यहाँ पे 1 unit के लिए कंज्यूमर 50 रुपीज पे करने को रेडी है. दैट मीन्स ये चीज बताती है कि कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा उस पहली बॉटल से, दैट वुड बी मैक्सिमम, दैट वुड बी वेरी हाई, और उसको आप 50 रुपीज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, राइट? सो यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड हियर. द यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द मनी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे, राइट? अदर देन दैट, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी किसे कहते हैं कि if I spend 1 rupees extra on any commodity, अगर मैं 1 रुपये एक्स्ट्रा कमोडिटी पे खर्च रही हूं तो जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगा उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कहते हैं. देयर इज अ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, नो मैटर कौन स्पेंड कर रहा है, रिच पुअर, नो मैटर किस सिचुएशन में स्पेंड कर रहा है, दैट इज नॉट अ कंसर्न. मार्जिनल यूटिलिटी कांस्टेंट कि अगर 1 रुपये एक्स्ट्रा कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है तो उसको 10 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज अ कांस्टेंट. दैट इज अनदर असम्पशन. सेटरिस पेरिबिस, दैट मीन्स कि यहाँ पे कंज्यूमर का इनकम, कंज्यूमर की टेस्ट, कंज्यूमर की प्रेफरेंस, लाइक डिसलाइक, सब कुछ कांस्टेंट है. देयर इज नो चेंज इन द सेम, राइट? सो यहाँ पे देयर इज अ कांस्टेंसी ऑफ द अदर फैक्टर्स, द टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द कमोडिटी. इंडिपेंडेंट मार्जिनल यूटिलिटी. इंडिपेंडेंट मार्जिनल यूटिलिटी दैट मीन्स यहाँ पे जो सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को पानी पी के, एक वाटर बॉटल कंज्यूम करके जो सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है, वो सेटिस्फैक्शन किसी दूसरे कमोडिटी पे निर्भर नहीं है, राइट? सो दैट इज द इंडिपेंडेंट मार्जिनल यूटिलिटी. ऑलराइट, सो यहाँ पे जो भी पानी का कंजम्पशन है दैट इज इंडिपेंडेंट, किसी दूसरी कमोडिटी पे वो सेटिस्फैक्शन डिपेंड नहीं कर रहा. सो दैट इज इंडिपेंडेंट मार्जिनल यूटिलिटी. देयर इज अ 2 more assumption. The 5th one is a no substitutes available. This is again important that there is a no substitutes available कि जो भी कंज्यूमर ये कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है उसका कोई सब्स्टिट्यूट अभी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, राइट? इसलिए ही वो जो है इतना प्राइस पे करने को रेडी है और इतना कंज्यूमर सरप्लस वो एंजॉय कर रहा है. अगर कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता तो मे बी कंज्यूमर इतना हाई प्राइस नहीं पे करता और वो कंज्यूमर सरप्लस भी इतना एंजॉय नहीं कर पाता. बट यहाँ पे देयर इज अ नो सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, ऐसा अजम्पशन हमने रखा है. द 6th one is a law of diminishing marginal utility which we discussed in the previous video. So that is also applicable here, law of diminishing marginal utility. So that means कि कंज्यूमर का जो कंजम्पशन है, जब वो लगातार एक ही कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहा है, एक पॉइंट के बाद जो सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है दैट इज डिक्रीजिंग. सो हियर व्हाट यू कुड सी, द प्राइस जो कंज्यूमर विलिंग है टू पे फॉर द कमोडिटी दैट इज डिक्रीजिंग. व्हाई इट इज डिक्रीजिंग? बिकॉज जो सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है वो धीमे धीमे कम हो रहा है, उसकी प्यास बुझ गई है, सेटिस्फैक्शन हो गया है. सो दैट इज डिक्रीजिंग. सो दिस लॉ अप्लाइज हियर, राइट? अगर हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कंज्यूमर सरप्लस का देखते हैं, सो से फॉर एग्जाम्पल दिस इज प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी. ये मार्केट प्राइस है जिसपे जो है कमोडिटी अवेलेबल है, एंड दिस इज द क्वांटिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज, राइट? नाउ द कंज्यूमर सरप्लस हो सकता है कि कंज्यूमर P1 प्राइस रेडी है टू पे, राइट? बट जो मार्केट प्राइस है वो तो जस्ट P यूनिट्स है और कंज्यूमर तो ज्यादा पे करने को विलिंग है. So this is nothing but this excess area is nothing but the consumer surplus. So this excess, the excess of the market price which a consumer was willing to pay, that is nothing but the consumer surplus. So I hope you understand the concept.